Mobile commerce, also known as the m-commerce, it refers to buy and sell the goods or services through the use of internet. It means in commerce, in online can purchase and selling the product. M-commerce provides the user the advantage of the flexibility and ubiquity. By use of the mobile phones, the consumer can conduct the business transaction without being fixed at the computer terminal and being physical present at the shop. These devices are carried by the user wherever we go, make possible to access the internet from any place. It allows the real-time transaction while on the moving. As the popularity of the smartphone and tablet is increased day by day, more users can move towards the use of m-commerce. Some of the examples of m-commerce are purchasing airline tickets, movie tickets, restaurant booking, reservation, hotel booking, and reservation of the railways and air tickets. Stock market analyzing. Banks and financial institutions are increased by the use of the m-commerce retain the business. मतलब कि देखो पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन या कोई भी एम कॉमर्स मतलब क्या है कि पूरा मोबाइल के बेस आपका पूरा बिजनेस। सपोज करो मुझे कोई चीज़ खरीदना है या कोई चीज़ बेचना है या कोई टिकट बुक करनी है या होटल बुक करना है या स्टॉक एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन देखनी है, राइट। मूवी टिकट बुक करना है, तो ये सारा काम किस में हो गया अब मोबाइल बैंकिंग में, राइट। तो मोबाइल डिवाइसेस आर ऑल्सो बीइंग पॉपुलर and known mobile brokerage. New information, sports, entertainment, shopping, and reservation areas have also grown with the demand for the mobile related services. Now, next is the benefits of the m-commerce. Mobiles being used for more and more in the daily service today. The used to make the receive the call. Mobile companies are upcoming with the new features for their smartphones. पहले मोबाइल फ़ोन किस लिए यूज़ होते थे? रिसीव करने के लिए और आउटगोइंग के लिए, सिर्फ बात करने के लिए हम यूज़ करते थे ना। बट नाउअडेज द कंपनी हैज़ प्रोवाइडिंग द न्यू फीचर्स फॉर their smartphone which have the consumer case, the facility, security at the same time. अब वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइसेस को, जिससे हम हमारे मोबाइल्स को यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि जो भी मेरा मोबाइल का डेटा जो है वो मेरा क्या रहे, सिक्योर रहे। The web design and the development companies have optimized the websites such can be viewed correctly on the mobile devices. M-commerce is integration of the wireless network access through the handheld devices and internet. The benefits of the internet and e-commerce are offered by the m-commerce. Also, some of the advantages of the m-commerce has listed. तो देखो advantages क्या है, हमारे फायदे क्या हैं m-commerce से, मोबाइल डिवाइसेस से। It provide the convenience of the user to few the click of the mobile device. मतलब एक क्लिक से आपका जो भी काम है वो कंप्लीट होता है by using the clicking on the mobile devices. It reduce the transaction cost, मतलब कि आने जाने का जो खर्चा है, सपोज कोई चीज़ लेनी है तो आप ऑनलाइन भी आप गेट कर सकते हो, तो वो आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपका कम हो जाता है। यूजफुल टू द डिलीवर टाइम, क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, कस्टमाइज अलर्ट्स इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल डिवाइस। कोई भी कस्टमाइज अलर्ट्स है इंफॉर्मेशन तो वो भी आप इजीली गेट कर सकते हो। टाइमली इंफॉर्मेशन कैन रीच द यूजर, इंफॉर्मेशन लाइक फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल, delay or cancellation can be done on the user mobile devices on the real time basis. Limitations of the m-commerce. लिमिटेशन मतलब क्या है कि डिसएडवांटेजेस, इसका है लेस कन्वीनियंट फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, मतलब आपको पीसी में थोड़ा बड़ा और फुल स्क्रीन में दिखाई देगा और मोबाइल में आपको इतना स्क्रीन पोर्टेबल स्क्रीन में दिखाई देगा। इट हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिश मोबाइल एंड वायरलेस ब्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे पहले अभी देखो ऑनलाइन में आपको ये एम कॉमर्स यूज़ करना है तो सबसे पहले एक अच्छा सा मोबाइल आपको लेना पड़ेगा जो कॉस्टली होना चाहिए, और दूसरा उसका वायरलेस बैंडविड्थ स्ट्रक्चर, मतलब वो इंटरनेट किस तरह से गेट पाता है। Now, it operates the wireless network which has less secured as compared to the wired network. Now, applications of m-commerce. Applications of m-commerce are increasingly rapidly used today in many areas, are not limited to the ones discussed here. More and more information will introduce in the near future. Let us discuss some of the applications of m-commerce.
फर्स्ट इज द मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग मतलब क्या है? टू गिव द सर्विसेज टू द मार्केट टू द एडवर्टाइजमेंट इन द मोस्ट popular ways to the companies to reach a large audience. Advertisement on the internet become major source of the revenue, and the most of the portals, most of the retails and advertising plays on the mobile devices the user can meet the personal requirement. अभी देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में बैनर्स लगाए जाते थे, होल्डर्स लगाए जाते थे रोड पे। तो अभी ये क्या हो गया? मोबाइल मार्केटिंग, जिससे पर्सन को तुरंत एक मैसेज भेजा जाता है, एक वीडियो या फिर एक इमेज भेजी जाती है, जिससे वो मोबाइल की कोई भी चीज़ की मार्केटिंग हो सके बाय यूज़ ऑफ द इंटरनेट। अभी यह देखो, एक एग्जांपल दिया है मोबाइल टिकटिंग। मोबाइल से किस तरह से एक रेलवे टिकट बुक की जाती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल में मैंने ब्राउज़र में इंडियन रेलवे कैटरिंग ब्राउजिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओपन किया है, राइट। IRCTC लॉगिन का पेज। उसके बाद मैंने डिटेल ऑफ जर्नी की जो मेरी डिटेल्स है वो एंटर करूँगा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है और कौन से डेट पे, राइट। नाउ इट शो द अवेलेबिलिटी, द लिस्ट, अवेलेबिलिटी लिस्ट डिफाइन करेगा कि टिकट अवेलेबल है या नहीं, जो भी आप क्लास में एंटर करोगे कि फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फिर सेकंड क्लास। नाउ डिटेल्स ऑफ द जर्नी विद अवेलेबल ट्रेन लिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द एंटर द डिटेल ऑफ द पैसेंजर फॉर द टिकट बुकिंग। अभी आपको टिकट बुक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी? डिटेल एंटर करनी पड़ेगी पैसेंजर की, राइट। आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपको टाइप करना पड़ता है, एज। नेक्स्ट है मोबाइल ऑप्शन। मोबाइल ऑप्शन मतलब आप इसमें से होम पेज में से ईबे में से आप कोई भी मोबाइल भी बाय कर सकते हो या ऑप्शन बेच भी सकते हो आप। here we can want to sell या we can want to buy the mobile. Now next is the mobile entertainment. Mobile device is used extensively and the listening and to audio, viewing the video and playing games. To subscribe the entertainment libraries which can search the song, video, games and download from it. अब मोबाइल में आपको एक फैसिलिटी दूसरी भी दी जाती है कि आपको कोई भी गेम, गाना या वीडियो देखना है और उसको डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड करके फिर से भी आपके मोबाइल के स्टोरेज में सेव करके आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक आपको बताया कि एक मोबाइल में किस तरह से कोई चीज़ को परचेज़ करना है। तो देखो सबसे पहले एक फ्लिपकार्ट का होम पेज रहेगा, उसके बाद कैटेगरी कि आपको क्या खरीदना है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट इन कैटेगरी कि आपने क्या आपको खरीदना था। सपोज यहाँ पे दिया गया कि कैमरा एंड एसेसरीज, तो आपने कैमरा या खरीद लिया, राइट। अब कौन सा कैमरा आपको पसंद आया वो आप सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे देखो उसका कॉस्ट आपको दिया गया है कि कौन सा कैमरा आपने सिलेक्ट किया और प्लेस ऑर्डर। उसके बाद प्रोवाइड द कस्टमर डिटेल, मतलब आप परचेस करने के बाद आपकी डिटेल आपको एंटर करनी रहती है जिससे वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच सके। नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर बताना रहता है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट को बुक करने के बाद आपकी डिटेल एंटर करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेमेंट करने के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई भी बैंक की फाइनेंशियल सर्विस की मदद लेनी पड़ती है। उसका लॉगिन और पासवर्ड एंटर डालना पड़ता है, राइट, जिससे वो जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट वो पे कर पाए। नेक्स्ट है तो देखो मोबाइल की इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी है। फर्स्ट है न्यूज़ सर्विस, स्टॉक मार्केट डेटा, स्पोर्ट्स न्यूज़, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आप सर्विसेज की मदद ले सकते हो। नाउ लोकेशन एंड द सर्च डिवाइस। सर्च लोकेशन मतलब कोई चीज़ या कोई जगह। सपोज करो कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, अगर कोई मॉल जाना है मुझे घर से, अब मुझे मालूम नहीं है कि वो मॉल कहाँ पे है, तो आप एल कॉमर्स की मदद से, मतलब लोकेशन की मदद से आप, जैसे हमारा गूगल मैप है तो उसकी मदद से हम पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम तक, राइट। So it is important to the location and serve the service. It able to provide the list of the stores in the list city or a nearby of the mobile users current location. Knowing the location of the mobile user, hello,
vendor to provide the location-based services such as local maps, local offers, local weather, movie theater, restaurant, hospital, and other such amenities. Let us learn about the location-based search known as L-commerce. L-commerce मतलब क्या? With more and more wireless handheld service (PDA), the cellular phone and the pocket PC, there are the significant opportunity for the growth of the N-commerce. Although the mobile commerce enable to access the goods and services regardless of the location of buyer and seller. These application track the user location in order to deliver the service or provide. तो देखो एल कॉमर्स का मतलब ये भी नहीं कि आप कोई चीज़ कोई जगह याद पहुंचने के लिए सपोज करो कि मुझे कोई लोकेशन में इमरजेंसी लेवल में पहुंचना है या रूट का मदद लेना है कि रास्ता छोटा और मेरा टाइम भी बचे तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए जिससे आपका काम इजीली हो, आप पर्टिकुलर लोकेशन में तुरंत पहुंच सके एट ए इन अ शॉर्ट टाइम, राइट। तो एक वाईफाई स्पॉट होना चाहिए या फिर आपका मोबाइल डेटा ऑन हो जाए जिससे वो गूगल मैप काम कर पाए। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल अहमदाबाद का दिया गया है। At a particular location, the advertising seen on the mobile device in the specific location configure the user currently location at the city road in Ahmedabad. If the user want to search the restaurant and close to the current location, मतलब वहाँ जो खड़ा है उसको यहाँ से अपने लोकेशन से कोई रेस्टोरेंट जाना है तो यूज द एल कॉमर्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो सर्च द नियरेस्ट रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू द यूज़र लोकेशन। जहाँ आप खड़े हो उसके आसपास के रेस्टोरेंट की लोकेशन वो फाइंड करेगा। कितने किलोमीटर के अंदर चाहिए वो भी आपको डिफाइन करेगा कि 2 माइल के अंदर चाहिए, 1 माइल या 10 माइल के अंदर। तो वो सर्च करेगा जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे डिस्टेंस। उसके बाद वो सर्च रिजल्ट आफ्टर फिल्टरिंग जो भी उसके नज़दीक में रेस्टोरेंट रहेंगे वो डिफाइन करेगा। और यहाँ पे देखो यूज़र मैप टू फाइंड द यूज़र लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन ऑप्शन टू एंटर द डेस्टिनेशन, आपको डेस्टिनेशन एंटर करनी पड़ेगी। देन आफ्टर सिलेक्ट द डेस्टिनेशन, तो जो भी आप एड्रेस पे जाना चाहते हो वो डेस्टिनेशन, और उसके बाद वो रूट फिक्स कर देगा जहाँ पे आपको पर्टिकुलर जाना है। नाउ डिस्टेंस एंड अप्रोप्रिएट टाइम रीच ऑफ द डेस्टिनेशन। इसके बाद सारा सिलेक्ट करने के बाद वो आपको क्या डिफाइन करेगा, आपका एरिया, डिस्टेंस एंड एप्रोप्रिएट टाइम वो डिफाइन करेगा आपकी स्क्रीन में। और उसके बाद आपको नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 5.20 में आपको ड्राइविंग इन्फॉर्म डायरेक्शंस भी डिफाइन करेगा जिससे आप इजीली पर्टिकुलर प्लेस में जा पाओ। नाउ सिक्योरिटी इशू एंड द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन होगा। थैंक यू।